afternoon, Utkarsh. Good afternoon, Utkarsh. Good afternoon, ma'am. Who is this? Ma'am Utkarsh. Okay, I thought some girl. How are you? Fine, ma'am. Fine. Okay, Ma'am, wait for a minute. I'm connecting my webcam. Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Fine. Tell me where were we in the last class? I think we were doing question answers, right? Yes, ma'am. Civics question answer. Yes, ma'am. But they done or not? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Anushi. Beta, please keep your cameras open, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Parish. How are you? I'm fine. Okay. Excuse me, ma'am. Yes, Arushi, please ask what Ma'am, you are. Huh? Need to open the camera for a long time because my battery drains too much while opening the camera and I'm facing issues with my battery. Okay, no problems. You can keep it off, no issues. But if I call you, do respond, okay? Yes, ma'am. Fine. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, beta. Good morning. Fine. Civics chapter is over. Chapter 1. Yes, ma'am. Question answers and Ma'am, everything. you made us right? find all the extra question answer also. And ma'am, Right, NCRT also. Perfect. Perfect. So we are going to start with the new chapter, that is federalism, right? Okay, ma'am. Why this chapter we are starting? It is because this chapter is in continuation with the one that we have already done in the previous of the previous chapter. So if we'll do these two chapters collectively, you'll be able to better understand, because chapter 1 is fresh in your mind, whatever we have done. So you can easily relate to what we are going to read in the second chapter, right? Good Yes. afternoon. Good afternoon, beta. Anvesha, Rudransh, Harshit, Saksham, Shreya, open your cameras, beta. Harshit was not there in the last two classes. Yes, ma'am. Fine, all fine. Yes, ma'am. Ma'am, we have not got our timetable, ma'am. Correct, ma'am. So, ma'am. No, timetable was posted on the class groups. Ma'am, it was posted, ma'am, but it was not as, ma'am, that our classes are. No, ma'am, no. that we- Ma'am, it was the wrong timetable. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last Sunday, sir posted a timetable. Yes, New ma'am, time. but it is not right. Classes are not going as per that. No, ma'am. Ma'am, it is, ma'am, old No, ma'am. one only. It is the old one only. Yes, ma'am. Arey,
See, my period will be this only 12-10 till 31st of March. Okay, so hardly 3 days are left now. When school management will post the that we will come to school from 1st April. That you will get. Why are you worried? If not from 1st April, then from Monday onwards. But you will definitely come. Don't worry. Okay. Work Yes, is on full progress. Okay. Chal. So we'll start with the new Ma'am, chapter. the online Ma'am, class are we there have- many changes, ma'am? Many Ma'am, changes. are there many changes? Changes as such. See, all the wirings that were on the walls, they have been put inside, right? Then the switchboards which were there, they have been changed. Complete renovation of the washrooms, and few more internal changes are there which you will not be able to get, because they are all internal. I think chalkboards should be replaced with whiteboards. What should be? No, green boards look so good. No, green board looks so good, isn't it? No, ma'am. Ma'am, actually, when you teach, ma'am, your sari gets spoiled with chalk powder. Really? Ma'am, Ma'am, for welfare of teachers, ma'am, he has experience of that, ma'am. No, means he knows, because teachers must be complaining for the same. No, that is why. Okay, that is good. Ma'am, Huh? after the school opens, then ma'am, online class will never open. Beta, we really don't know what the future has in store for us actually. China, again, the cases have increased, death toll has increased. है ना? So Yes, ma'am. nobody knows, beta, what is there in store for us. But we are just praying that we will not have online classes. We should have only offline classes. Okay, Yes, ma'am. right? Chalo. So before we start with the things, what is federalism? Who will tell? Yes, Harshit. Ma'am, for Huh? Ma'am, a system of government in which power is divided in both Between. central and Ah. state. Between central and the state government. We have read this in previous chapter, right? Yes, ma'am. yes, Right. Now, I'm in the 8th class. Also. in 8th class also we read about this. Now in this chapter, we will come to know that this federalism is practiced in two ways, right? There is coming together federation and holding together federation. But before we read this holding together and coming together, I would like to tell you about the difference between the federal system of governance and the unitary system of governance. And if you can see on the screen, it is showing that there is a distinction: federal form of government and unitary form of government. Can you all see this? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now, see, most of the countries, like take example of India, take example of Belgium, take example of Spain. These are the countries where the form of government that is practiced is federal form of Ma'am, government. Federal form of government, right? And countries like Sri Lanka, अच्छा ठीक है, श्रीलंका को भी हटा दो. Countries like USA, Switzerland, ये जो countries हैं, Australia, these countries, they have the unitary system of governance. ठीक है? Ma'am, there are no states in America. Yes, there are no states. I will come to that. आपने कई बार सुना होगा ये कहते हुए कि भारत एक संघीय राष्ट्र है. संघीय, यूनियन ऑफ स्टेट्स. Yes, ma'am. पढ़ा है Ma'am, ना? but I have heard that Bharat एक जनादेश है. भारत एक Ma'am, जनादेश है. लोकतंत्र आपने सुना होगा, है ना?
जनादेश का मतलब इज बेसिकली वेयर पीपल हैव द सुप्रीम पावर, ठीक है, जहाँ पे लोगों के आदेश का पालन होता है। यहाँ पे जो रूलर्स है दे डोंट रूल बाय देयर ओन विशेस, नो, दे रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, है ना, यही तो है, Yes, ma'am. ठीक है, यही तो है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स एक टर्म हो गया जिसको कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में क्या है कि यूएसए जो है छोटी छोटी कंट्रीज को मिला के बनाया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि एक साथ आए और उन्होंने जो है And एक बड़ी 53. यूनिट को, हाँ Ma'am, I think it's about 51, ma'am. 51 states. हाँ, मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स राइट नाउ, आई एम सिंपली ट्राइंग टू टेल यू कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो फेडरेशन होती है, उसको हम दो तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दो रूट्स है, दो रास्ते हैं जिन पे चल के हम इनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। होते ये डेमोक्रेटिक वेज ही हैं, बट इसमें भी दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, राइट। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है ये आपको यूएसए में देखने को मिलता है, ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आपको क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है ये आपका लार्ज यूनिट जो होती है डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, जो डाइवर्सिटी प्रिविलेंट होती है इन द कंट्री उसको अकोमोडेट करने के लिए जो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किए जाते हैं और उनमें पावर डिवीजन होता है। तो दिस इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, can you ma'am. tell again? Ma'am, I got disconnected. हमने ये बताया कि फेडरेशन जो फेडरलिज्म होता है वो दो फेडरेशन को हम दो रूट्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर एक रूट हुए है, मतलब एक रास्ता है टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म, एंड कमिंग टुगेदर एक रास्ता है टू प्रैक्टिस फेडरलिज्म, ठीक है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि केवल एक ही सेंट्रल अथॉरिटी होती है, ठीक। और होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है उसमें बड़े यूनिट को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट लेवल्स सो दैट कि गवर्नेंस जो है नॉर्मल हो जाए, स्मूथ हो जाए, गवर्नेंस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना रहे। तो सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं 3 टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हम कहते हैं ना लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट या टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात एक ही है, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है, और इसमें जो है कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका उसके पास सुप्रीम पावर्स होती है टू एक्सरसाइज, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. हाँ, यस तरन, यू वांट टू से समथिंग? Ma'am, in united form of government, ma'am, which is the thing which keeps all those countries integrated? इन यूनाइटेड व्हाट? Ma'am, in unitary form of government, which thing keeps all these countries integrated? Because, इंटीग्रेटेड क्या होता ma'am, है? देखो यूनिटरी में क्या होता I है? remember, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। I mean, in standard, you told that every state of USA has its own constitution, separate constitution. So if बिल्कुल। constitution is different, so how one country can be one? ऐसा होता है कि सेंट्रल पावर जो होती है वो सेंट्रल जो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, बाकी ये जो जितने भी है वो सबऑर्डिनेट होते हैं यूनिटरी फॉर्म में, है ना। एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, बाकी सब यूनिट्स होते हैं। जैसे ये अमेरिका की अगर आप एग्जांपल देखते हो तो ये एक बिग यूनिट हो गई और ये सारे के सारे इसके सब यूनिट्स हो गए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब कि ये काम इनके अकॉर्डेंस में करते हैं। वो अलग बात है कि उनका जो वो है क्या बोलते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनके हेड्स अलग होते हैं। भाई आप देखो वहां पे गवर्नर्स होते हैं जो रूल करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ना ही चीफ मिनिस्टर्स हैं, नहीं है ना। राइट? हाँ, Yes, Yes, ma'am. ठीक है। तो
ये कमिंग टुगेदर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कमिंग टुगेदर ma'am. को अगर आप देखो तो कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक छोटी छोटी इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो एक साथ आके एक बड़ी यूनिट को बनाती हैं, ठीक है, और इन सब के पास जो है इक्वल पावर्स होते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ये जितनी भी ये जो सब यूनिट्स हैं इन सबके पास इक्वल पावर्स होती है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर हम होल्डिंग टुगेदर को देखते हैं तो होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल सबसे ऊपर होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो स्टेट और लोकल है ये जो है बहुत ज्यादा जो है पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे अनइक्वल पावर्स होती हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। इंडिया के केस में जब तक जम्मू कश्मीर जो है में आर्टिकल 370 था तब तक जो है स्पेशल प्रोविजंस थे उस स्टेट के लिए, बट जब से 370 हटा है तो सारे वो स्पेशल प्रोविजंस भी हटा दिए गए हैं वहां से, ठीक है। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है उसमें क्योंकि वो बड़ी यूनिट कंट्री होती है, लार्ज कंट्री होती है, जो कि डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से पावरफुल रहती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इट हैज गॉट अनइक्वल पावर्स। सारे स्टेट्स के पास एक जैसी पावर्स नहीं होती है, अलग अलग पावर्स ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। Yes. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन दी state or the local governments that are there. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, then which type of government is better? Beta, holding together is always better. अपने अपने देखो And अपने ma'am, अपने coming together? हाँ, कमिंग And coming together? कमिंग टुगेदर में ये हो जाता है ना कि भाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, और जो है इनके पास जो है सारे स्टेट्स के पास एक ही जैसी पावर्स होती है, तो कुछ खासा फर्क होता नहीं है इन लोगों में, सब लोग ऑलमोस्ट बराबर एक जैसे ही होता है कोई। और ऐसा होता है ना जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है ना वो बेटर इसलिए है कि कभी भी ये लोग जो है जो स्टेट्स हैं ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमें अलग से कुछ पावर दो या हमें अलग कर दो। यहाँ पे तो पता है क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, कोई भी कंट्री अगर चाहे कि हमें अलग होना है तो वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो मिलके जो है उन्होंने यूएसए को बनाया है ना, जब वो साथ में आए उन्होंने कुछ कंडीशंस पे एग्री करा तब जाके इन्होंने जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। तो ये चाहे तो अलग भी हो सकते हैं, पर हमारे कंट्री में ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक। Yes, ma'am. चलिए, ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये जो आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में पहले दोनों में, इन दोनों कंट्रीज में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिस होती थी, बट बेल्जियम में इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, भाई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो बेल्जियम ने क्या करा, अपने आप को यूनिटरी से शिफ्ट करके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लिया इन्होंने अपने आप को, ठीक है। बट श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका ने कुछ भी चेंजेस नहीं लाए, वो जैसे थे वो वैसे ही रहे, तो वो हमेशा वो यूनिटरी फॉर्म पे ही जो है अपने आप को स्टिक करके रखा उन लोगों ने। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, चलिए इतना क्लियर है। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो कि इंटायर कंट्री के वेलफेयर को चेक करती है, देखती है, और वो इंटायर कंट्री के लिए होती है। और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे होते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने लिस्ट सिस्टम पढ़ा था क्लास 8 में, आपको याद है? 7th में ही पढ़ा था स्टेट Yes, ma'am. yes, ma'am. स्टेट लिस्ट के Ma'am, बारे union में। list, contract list, and State constitution amendment. ना स्टेट लिस्ट Yes, ma'am. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये जो हमने लिस्ट सिस्टम पढ़ा है, इस लिस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? ये जो लिस्ट सिस्टम है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को स्पेसिफाई किया गया है फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट अपने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स अपने हैं,
ठीक है, जिन पे वो लॉज बनाते हैं। पर केवल कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है बेटा जिसमें कि दोनों चीजों पे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. देन हाँ जी प्रखर, Nothing. ओके, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट अब जैसे इसमें आपको ये लोग बताएंगे, लेट मी टेल यू। अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इट इज गिवन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये दिया गया है कि भाई यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉज बनाएगी। जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पे केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी गिवन। ठीक है, उसके बाद वी हैव दी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स पे लॉ जो है ये दोनों गवर्नमेंट्स बना सकती हैं, पर कंडीशन ये है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एक कॉमन सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है, ठीक है, एक जैसा लॉ बनाया है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको जो है एबॉलिश कर दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को इम्पोज किया जाएगा। ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. क्लियर है ये? Ma'am, could you please tell again? Yes, ma'am. हाँ, in concurrent list both the governments can make laws, but if there is a clash between the two laws made by both the levels of government, in that case the state law will be dismissed and central law will be imposed. Am I clear now? Yes, ma'am. Ma'am, but why, ma'am? Ma'am, this is not a part of it. नहीं, Ma'am, it is not कॉन्करेंट a की बात, हम कॉन्करेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग बनाते हैं लॉज, ठीक है, पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है बेटा, सेंट्रल अथॉरिटी है, पूरे होल कंट्री के लिए काम करती है, तो उसके लॉ को जो है वो माना जाएगा और स्टेट जो बनाता है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्करेंट लिस्ट के केस में होता है। ठीक है बेटा? Okay. Okay, ma'am. दूसरी चीज आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस टाइम पे दे वर नॉट प्रिविलेंट। आप सोचो 1947 में कभी किसी ने सोचा होगा कि बच्चे जो है घर में बैठे बैठे एक छोटी स्क्रीन के सामने क्लासेस लेंगे? कभी ऐसा सोचा था? नहीं ना। तो उन्होंने अपने वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का कोई प्रोविजन हो सकता है, क्योंकि पहले लोग क्लासेस कैसे इमेजिन करते थे? आउटसाइड, तो एक बार को इमेजिन करते थे, पेड़ों के नीचे इमेजिन करते थे, बट बंधे क्लासरूम्स में इमेजिनेशन जो थी वो ब्रिटिश जब आए तब हमारे कंट्री में ये प्रॉपर क्लासरूम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कि भाई बंद कमरों में एक सिस्टम को फॉलो करा गया जहाँ पे जो है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है एज के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम को सेट किया गया। भाई 5 साल के बच्चे के लिए जो रिक्वायर्ड है वो 15 साल के बच्चे के लिए थोड़ी रिक्वायर्ड होगा। 5 साल के बच्चे का करिकुलम अलग था, 7 साल के बच्चे का अलग था, 9 साल के बच्चे का अलग था, तो एज के अकॉर्डिंग जो है सबको अलग अलग करिकुलम दिया गया। ठीक है, अब ये हुआ कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि उस समय नहीं प्रेवलेंट थे, जैसे अगर हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि साइबर लॉज या साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ हमें जो है लॉज बनाने पड़ेंगे, राइट? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. एक सेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, दैट वाज ऑफ द रेजिडरी लिस्ट। ठीक है, ये जो रेजिडरी लिस्ट है इसके जो सब्जेक्ट, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर का ही पार्ट है, ये आईटी का ही वो है, तो जो भी आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे या सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार था वाज गिवन टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रेजिडरी सब्जेक्ट पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास ये है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है। आई होप आई एम क्लियर।
Yes, Ma'am, but this Ma'am. only contains the law, ma'am, which can be made in the cyber क्या computer. चीज, दोबारा बोलो, दोबारा परुष. Ma'am, ma'am, the central government that make a list by this power, ma'am. Ma'am, so the law that the central government, ma'am, it is only meant for the cyber crime, ma'am. हाँ हाँ, रेजिडरी लिस्ट का मतलब हुआ वो लिस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आई थी. तो ये डिसाइड हुआ कि रेजिडरी लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक लॉज. ठीक है, Okay. ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है. इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है. ठीक है, Okay. चलिए अब आप आ जाओ दूसरे इस पे प्रोविजन पे. इसके ये इतना समझ में आया. इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको फेस तो नहीं कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना आया हो? No, ma'am. All No, clear ma'am. and understood, no? Yes. ठीक है. अब हम दोबारा आते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपने खुद के सब्जेक्ट्स है जिन पे इट मेक्स लॉज. ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर्स नहीं देती है अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेरी अर्जेंट. अगर सिक्योरिटी की बात आती है, लोगों की जान के ऊपर बात आती है, सिक्योरिटी के ऊपर बात आती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरफेयर करते हैं स्टेट के मैटर्स में. बट अदरवाइज ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स अलग है. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. ठीक है. नाउ कमिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इट लुक्स इनटू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. रोजमर्रा का जो भी काम होता है स्टेट के अंदर उसको वो देखता है स्टेट गवर्नमेंट. और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कहे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो उनको आंसरेबल नहीं है. क्यों आंसरेबल नहीं है? क्योंकि एज पर लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं, और दोनों लोग अपनी अपनी पावर्स को अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करते हैं. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड. Yes. नेक्स्ट इज ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गई. 2 लेवल्स होते हैं इसमें जो. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. now coming to unitary form. Unitary में there is just one level and the sub units are subordinate to the central government. सिर्फ एक सब यूनिट एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जो सब यूनिट्स होती हैं दे आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कैन पास ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स. जो आपकी सब यूनिट्स होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स पास कर सकती है. और स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलवेज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो किन्हीं भी मुद्दों पे सवाल कर सकती है और वो हमेशा उनको आंसरेबल रहेंगे. आई होप आई एम क्लियर. क्लास. Ma'am, can you please explain the Ma'am. first point again? Ma'am, a doubt. हाँ तरन बोलो. एक मिनट परोश, एक मिनट. हाँ तरन बोलो. डाउट. Ma'am, in India we follow federalism, according to which we divide our country into several states. So, ma'am, why do we create union territories? यूनियन टेरिटरीज को हम स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते ना, वो बहुत छोटी है साइज में, तो इसलिए Ma'am, उनको मतलब union- उन्हें बनाते ही क्यों है union territories? क्योंकि उनको वो बनाना भी फंडा जरूरी. एग्जिस्टेंस में आया क्यों? वो क्योंकि वो स्टेट नहीं बन पा रहे थे, इसलिए जो है फिर कहा गया कि चलो ठीक है, इनको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया जाए, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगी. इन पे जो है यहाँ पे कोई सीएम वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे सीधे गवर्नर होगा जो कि ऑर्डर्स लेगा फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. मैम, लेकिन दिल्ली में तो है. तो बेटा दिल्ली का तो रीजन कुछ और है ना. दिल्ली तो जो है इसको स्टेटस स्टेट का दिया गया है ना, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इट हैज. मैम, लेकिन दिल्ली से ज्यादा पॉपुलेशन तो मुंबई की है. तो मुंबई तो अपने आप में एक स्टेट है ना, यूटी थोड़ी है कोई बॉम्बे. भाई आपने पूछा कि भाई यूनियन टेरिटरीज जो है, जैसे दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है, दिल्ली में अपनी खुद की गवर्नमेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भाई दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया है. स्टेटस ऑफ अ स्टेट इट इज गिवन, दो इट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, बट उसको स्टेटस दे दिया गया है एक स्टेट का. ठीक है.
मैम तो अगर मोदी जी चाहे तो केजरीवाल जी का कोई फैसला नकार सकते? हाँ बिल्कुल, पर एक बात तो देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटरी टू इंटरफेयर। ऑलराइट मैम। ठीक है, चलिए। मैम प्लीज एक्सप्लेन द हाँ, फर्स्ट पॉइंट हाँ ऑफ बता द रही हूँ। कह रहा है यूनिटरी का मतलब, यूनिटरी मतलब एक, सिंगल। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक लेवल होता है। जैसे यहाँ पे हमने लेवल्स बनाए ना अलग अलग, होल्डिंग टुगेदर वाला जो हमने अलग अलग लेवल्स बनाए, वो लेवल्स नहीं होते हैं यस मैम। यहाँ पे। केवल और केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी जो सब यूनिट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस है, बट वो केवल सबऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, राइट? मैम सबऑर्डिनेट में मींस मैम दे आर वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। Yes, they are working under the central government. Okay, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो हर्षित। मैम मैम यूटी 1 में मैम ये वाले चैप्टर्स आएंगे, ये वाला चैप्टर आएगा? 10th क्लास के यूटी की बात कर रहे हो आप? यस मैम। बिल्कुल, जितना पढ़ाएंगे नो उतना। मैम, ये पहला यूटी होगा। हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, 3 चैप्टर्स हो जाएंगे तब तक तो हमारे। ओके मैम। ठीक है, मतलब टेस्ट की अभी से चिंता हो गई है हर्षित ओबरॉय को। क्यों चिंता कर रहे हो टेस्ट की? बेटा पढ़ लो, पहले समझ लो। मार्क्स तभी आएंगे जब आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर मार्क्स नहीं आ पाते हैं, है ना? मार्क्स लाने के लिए हमें समझना जरूरी है पहले। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके मैम। चलो, परुष फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको बेटा? यस मैम। ओके, तो वी हैव गॉट 8 minutes, राइट? तो चलो अब हम पूछते हैं कि हमने जो आज पढ़ाया आप लोग को कितना समझ में आया। लेट मी सी। ओके, राइट Yes, ma'am. क्लास? चलो, तो हु इज गोइंग टू टेल मी? ओके, सक्षम शर्मा। सक्षम, Yes, ma'am. हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज फेडरलिज्म? Ma'am, federalism is a form of government in which, ma'am, power is divided among different levels of government. Okay, power is divided among different levels of government. Okay, that is the central and the state. ठीक है? Yes, ma'am. Yes. चलिए, हाँ, next, what is a unitary form of government, Parush? Ma'am, a unitary form of government is a form of government in which, ma'am, smaller subunits come together to form a central authority, and ma'am, the subunits work under the central government. ठीक है, there is only one level of government, इसको ऐसा कह लो। ठीक है, चलिए। Now, what are the two roots of federation? Anshika Yadav? Coming together and holding together. Okay. Now, what is this coming together and holding together federation? What is done in coming together and what is done in holding together? Some different states together Huh? and form a nation. Some different states come together and form a nation and come together. And in holding together, the power is divided among central, state, and local. हाँ, a larger unit, it is divided into different levels for a better governance. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, ये जो आपका can you give example of coming together and holding together federation? Ma'am, coming together USA and holding together India. ठीक है, coming together USA हो गया and holding together आपका India हो गया। ठीक है, can you tell me what is this list system in our country? हमारे कंट्री में हम Ma'am, there are 3 types of list: union list, हाँ, different list. नहीं, हमारे कंट्री में 3-fold लिस्ट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। 3-fold लिस्ट सिस्टम। तो ये 3-fold लिस्ट सिस्टम क्या हुआ बताओ? अन्वेषा, कैन वी हैव अन्वेषा टेलिंग दिस?
बताओ Ma'am, अन्वेषा. may I tell? Okay, Parush, tell. Yes, ma'am. Ma'am, in our country, ma'am, there are three kinds of list. That is, ma'am, first is union list, second is called state list, and third is concurrent list. Ma'am, in union list, ma'am, there are subjects which, ma'am, only the central government can make the laws. Ma'am, in the state list, ma'am, there are subjects on which only state government can make the laws, ma'am. And ma'am, in the concurrent list, ma'am, there are subjects Ma'am, on the which, ma'am, topics are both usually state and discussed in concurrent yes, list. ma'am. Hmm. Ma'am, both central and state government can make the laws, and ma'am, if they are law, if ma'am both the ma'am, if on a law, ma'am, state government and central government clash, ma'am, then the law of the central government is accepted and not the state government. हाँ, ठीक है. And what is the fourth list that has been introduced by the government, by the constitution? बताओ. एक और लिस्ट. Ma'am, it's हाँ, ma'am resign. Ma'am, residuary list. Yes, ma'am. Residuary list is introduced to make, and who has the authority to make laws on residuary list? Ma'am, central government. It is the central government. Very good. Very good. Okay, Shivansh. Which subject fall in the residuary list? Ma'am, the subjects related to the central government. ये कौन से सब्जेक्ट है उसके अंदर, ये पूछ रहे हैं. The subjects. करण बताओ, कौन रेजिडुअल लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट फॉल करता है? करण. Ma'am, it is a list mentioned in the constitution. हाँ, भाई उसमें सब्जेक्ट कौन से आते हैं? कोई सब्जेक्ट बताओ जो रेजिडुअरी लिस्ट का पार्ट है इस समय. Ma'am, Ma'am, related to ma'am, आईटी. ma'am, internet. Yes, Ma'am, आईटी. computer, Ma'am, laws of software, cyber crime. e-commerce. साइबर क्राइम. वेरी गुड. सो लॉज ऑफ साइबर क्राइम. Ma'am, आईटी सेक्टर से e-commerce रिलेटेड. हाँ, ई कॉमर्स हो गया. आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो लॉज हैं दैट फॉल अंडर द रेजिडुअरी लिस्ट. ठीक है. Ma'am, computer softwares also. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. आई थिंक आज की ये क्लास शॉर्ट एंड क्रिस्पी टॉपिक्स हमने जो है डिस्कस करे. दे आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस सेकेंड चैप्टर. आपको पता होने चाहिए कि ये क्या क्या चीजें हैं. ठीक है. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर under each list system that we have. Plus we will read about I'll explain you about the features of the federalism. ठीक है. फेडरलिज्म क्या होता है, क्यों इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, इसकी क्या खासियतें हैं, क्या विशेषताएं हैं, what are the features, important features of federalism that we will discuss tomorrow. Right class? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Or tomorrow I'll give you 2 flowcharts related to this chapter. I hope you all have completed your written work for the previous chapter along with the question answers and flowcharts. Yes, ma'am. ठीक है. Perfect. Very good. आप चाहो तो ठीक है. Do we have the book? टाइम नहीं बचा है हमारे पास. Any other thing that you want to know? We have just 1 minute left with us for the meeting to get over. Nothing to ask? No, ma'am. Ma'am, how are you? I am good. See, 3 days we have, and I think in these 3 days we'll finish this chapter. It's a very easy chapter, not very typical, but thorough reading is required. So tomorrow when you come for the class, make sure that you have already read those topics which we have covered today under explanation, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, that's good. Fine. Thank you, ma'am.
चलो okay बेटा, thank you all for coming. Class is not